Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another lecture of 2-minute series for Polity and Governance जहाँ पे हम एक रिविजन सीरीज कर रहे हैं for UPSC prelims। अब आज का जो इशू है, आज का जो लेक्चर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ऐसी कमिटीज़ कमीशंस जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं, जो कि रिसेंटली चर्चा में रही हैं, वी शैल बी कवरिंग दोज, राइट। सो वेरी ऑफन देन नॉट वी ऑफन गेट अ लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस also, right? Apart from the analytical questions, we also have certain factual questions which appear in the UPSC prelims. And oftentimes अगर हमको नहीं पता होता, if we are not aware of who constituted this committee or who were the members or say the chairperson of this committee or what was the mandate of this committee, किस काम के लिए बनाई गई थी, हम उन questions को solve नहीं कर पाएंगे। Why? Because it is obviously based on certain factual knowledge, है ना। तो वो आपको नहीं कहीं से ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अच्छा ये था इस चेयर का या ये कमिटी का काम था। तो इसके लिए आपको रिवीजन करनी ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अगर इनके बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम जब सीसैट में भी करते हैं, वी ऑफन सी दैट मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दे आर मोर रिलायबल। व्हाई? बिकॉज यू नो एक ही आंसर सही हो सकता है। वेयर से इन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वाले, डिस्पाइट द fact that your grammar, your English might be very nice, but they require a certain kind of conceptual understanding, and उसके अंदर जो है उन questions के अंदर there is some amount of doubt जो कि हमेशा रहता है। Similar is the case also with polity questions. So conceptual questions जो होते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है से liberty का क्या जो है मतलब है in the Indian Constitution, or what do you understand by the idea of constitutionalism, or what do rights emerge as in the philosophy of the Constitution. These are very analytical conceptual questions. You might feel that I feel this answer is correct, but UPSC के official key might give you a different answer. So such factual questions are very sitter questions कि अगर आपके पास ये knowledge है, there can be only one right answer जो कि बहुत obvious होगा, and if you know it, you will mark the right answer, right? So that is why as far as these factual questions are concerned, you should be very clear, they should be on your tips कि अगर ऐसे questions आते हैं आप इनको गलत बिल्कुल ना करें, and that is how you are able to score a very decent comfortable score in prelims, right? And जब comfortable score जो marks आपके बन जाते हैं तब एक mental tension भी खत्म हो जाती है कि result आएगा, क्या होगा, should I prepare for mains, should I not prepare for mains, should I be focusing on prelims only? So if you have a comfortable score well in the beginning, आपकी mains की तैयारी को भी जो है एक push मिल जाता है, right? So that is why these factual questions therefore become very very important, and that is why हम जो है ये 6 कमिटीज आज फटाफट देखेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे, इनको मैंने बाय नेम जो है पहले ही लिस्ट आउट कर दिया है कौन सी 6 कमिटीज हैं, राइट। दीज आर द जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, द हरीश कुमार कमिटी, द कमिटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, टास्क फोर्स ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, केसी रेड्डी कमिटी एंड जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी, राइट। अ लॉट ऑफ दीज कमिटीज आर वेरी पॉपुलर, राइट। और ये कमिटीज जो है कई ऐसी कमिटीज होती है जो कि उनके चेयरपर्सन जो है उनके नाम से पॉपुलर हो जाती हैं। कुछ कमिटीज होती हैं जो वो टास्क उनको दिया हुआ है, जो उनका काम है, जो उनका पर्टिकुलर मैंडेट है, वो उसके लिए पॉपुलर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के अंदर जो है हम मेन चीज़ें देखेंगे कि एक कमिटी कौन सी है, क्या कौन उनको चेयर करता है, किसने ये कमिटी बनाई है, and what is the purpose of that committee. This is what we will be looking at from prelims perspective, right? So without much ado, let's very quickly get on with the first committee. Now the first committee that we talk about is the Justice G Rohini Commission, right? अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कमीशन रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रही है, और इसके आने के चांसेस भी जो हैं बहुत है। Why? Because it concerns सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs. OBCs, SCBCs जो है हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। चाहे वो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जिसके तहत NCBC, National Commission for Backward Classes, was constituted into a constitutional body under Article 338B, चाहे वो very recent 127th Constitutional Amendment Bill हो जो कि बेसिकली अब बात करता है अबाउट स्टेट्स को पावर देने की, अबाउट टॉकिंग विच कमिटीज़ जो हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं आपकी स्टेट की SCBC लिस्ट के अंदर आएंगी,
राइट. सो ओबीसीज एंड एससीबीसीज को लेके काफी चर्चा रही है, एंड वन ऑफ द मेन इश्यूज विद रिगार्ड टू ओबीसीज हैज आल्सो बीन this idea of sub categorization, this need for sub categorization. And इसी issue को और in depth पढ़ने के लिए, to know more about this issue and to reach a final conclusion as to what to do about it, a committee of experts was constituted. A commission for the subcategorization among the OBCs was constituted, which is headed by Justice G. Rohini. So ये किसने constitute की थी? जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, they set up a commission for this purpose. For what purpose? For the purpose of sub-categorization of other backward classes. Sub-categorization का क्या मतलब होता है? That instead of OBCs being one uniform, one standard homogeneous group, हम उस ग्रुप के अंदर भी जो है various categories बना देंगे, so that within the OBCs, rather than one group or only one community cornering all the benefits, it can trickle down to even the most backward of the SCBCs, and nobody is left behind, right? So that is the idea of categorization, that is the idea of sub-categorization. तो इसके लिए जो है ये कमीशन जो है बनाई गई है. अब ये कमीशन ने जो है काम करना शुरू किया 2017 में, एंड इट इज हेडेड बाय whom? It is headed by a former Delhi High Court Chief Justice, that is Justice G. Rohini. तो जो रिटायर्ड जस्टिस ये रही हैं, जस्टिस जी रोहिणी, शी इज हेडिंग दिस कमीशन. ये कमीशन जो है अपार्ट फ्रॉम जस्टिस जी रोहिणी हु हैपेंस टू बी द चेयरपर्सन, इसके अंदर और भी मेंबर्स हैं. वन इज वेरी इंपॉर्टेंटली जो सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज है, उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जे के बजाज, राइट, ही इज ऑल्सो अ मेंबर, एज वेल एज दो और जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो आर्टिकल 340 है, आपको अब इस कमिटी के साथ एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट होगी प्रीलिम्स के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 340, जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को. इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं इनटू द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. सो एज द कंट्री प्रोग्रेसेस, एज जो हमारा जो आगे बढ़ता है, टाइम आगे बढ़ता है, वी हैव टू चार्ट कि कितनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गई ओबीसीज में, क्या कितने हद तक वो अभी भी बैकवर्ड है, विच आर द कम्युनिटीज विच आर द मोस्ट बैकवर्ड अमंग्स देम. सो इन सब पे चर्चा करने के लिए, इन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन. सो वी हैव हैड a couple of such commissions even in the past, जो कि हम बैकग्राउंड के अंदर अभी डिस्कस करेंगे. ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है, इसको बनाया गया है ताकि हम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ओबीसीज के अंदर कैटेगरीज जो हैं उनको डिवाइस कर सके, सो दैट द बेनिफिट्स आर नॉट कॉर्नर्ड बाय ओनली some of the communities, but in fact they can be an equitable distribution of benefits. एक तरह से इगैलिटेरियन बेनिफिट्स जो हैं, इगैलिटेरियन तरीके से बेनिफिट्स जो हैं सब तक पहुंच सके, हर कम्युनिटी, हर ग्रुप ऑफ ओबीसी जो है इनका एडवांटेज ले सके, इनका फायदा उठा सके, उसके लिए ये जो है कमीशन बनाई गई है. नाउ जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. इससे पहले द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है, जो कि बिठाई गई थी 1955 के अंदर, जब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस आगे रखी, उन्होंने भी प्रपोज किया था दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ब्लैंकेट ग्रुप ऑफ ओबीसी, let's have sub categories in them. and इन्होंने ये सब कैटेगराइजेशन दो ग्रुप्स के डिवीजन के अंदर बात की थी. द फर्स्ट वुड बी द बैकवर्ड, राइट, बट ऑब्वियस अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो जो बैकवर्ड है, एंड देन अमंग्स दोज ओबीसीज ऑल्सो जो कि स्पेशली बहुत पिछड़ी हुई हैं, जो कि स्पेशली से उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके सोशल बहुत जो है सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन उनमें बहुत सही है, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली वो बहुत बैकवर्ड है, राइट, उनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज का जो है दर्जा मिलेगा, ठीक है, एंड उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो है वो हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं. Then the Mandal Commission report also, which was submitted in 1979, within that also such a recommendation came in the form of a dissent note. Dissent note क्या होता है कि उनके recommendations में से एक member जो है उन्होंने अपना dissent व्यक्त किया. This member was L.R. Nayak, and he said that rather than having a blanket reservation for all OBCs, let's categorize those OBCs into two groups: intermediate and depressed backward classes. Intermediate, as the name itself suggests, will be those groups that yes,
they do suffer from certain social and educational backwardness, but compared to the depressed backward classes, इनकी कंडीशन जो है relatively better है. तो ऐसे ग्रुप्स विद इन दी ओबीसी जो कि और भी ज्यादा बैकवर्ड है, और भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, दे सफर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेप्रिवेशन एज फार एज सोशल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड मेरिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न. उनको उन्होंने बोला हम डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस बुला सकते हैं. राइट, सो गिवन द फैक्ट कि ऐसी रिकमेंडेशंस पहले भी आई हुई हैं, अब ये जो कमीशन है इन्हीं चीजों के ऊपर दोबारा नजर डाल रहा है. इनफैक्ट इवन बिफोर दिस 2015 के अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, उन्होंने भी प्रपोज किया था दैट द ओबीसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ बैकवर्डनेस. द फर्स्ट विल बी द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको उन्होंने क्या बोला, ग्रुप ए. नाउ दिस इज द ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, दिस इज द सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज अमंग्स द ओबीसीज जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो सफर करते हैं. मोर ऑफन देन नॉट दीज आर ऑफन जो ग्रुप्स जिनको हम अबॉरिजिनल ट्राइब्स होती हैं कई जगहों पे, ठीक है, वो इनके अंदर फॉल कर जाते हैं. नोमैडिक या सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स होती हैं वो ऑफन इनके अंदर आ जाते हैं, या ऐसे लोग जो कि अभी भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो है करते आ रहे हैं एंड मॉडर्न ऑक्यूपेशंस एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल उन्होंने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया. राइट, जैसे कि बंजाराज आपने सुना होगा, राइट, जो कि बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं. तो वो इधर से उधर घूमते रहते हैं कैरावैन्स में, अपनी जो कुछ चीज़ें होती हैं पॉटरी या कोई और क्राफ्ट, उनको जगह जगह जाके जो है बेचते हैं. तो ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर ओबीसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो ये अभी भी वही अपने ट्रेडिशनल काम जो है करते आ रहे हैं एंड देयरफॉर दे माइट सफर फ्रॉम ग्रेटर सोशल एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देन मे बी से कंपेयर्ड टू सर्टेन अदर ग्रुप्स. Then there is more backward classes. More backward classes consists of certain groups and communities जो कि vocational groups या फिर कुछ ऐसे traditional handicrafts वाली चीज़ों के अंदर जो हैं वो काम कर रहे हैं. उनको आप मोर बैकवर्ड क्लासेस या ग्रुप बी के अंदर जो है कैटेगराइज कर सकते हैं. देन सबसे ऊपर इनमें आएंगी एक तरह से जिनकी लीस्ट अमाउंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, दैट इज द बैकवर्ड क्लास या ग्रुप सी, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा फॉरवर्ड है या फिर कंपैरेटिवली उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है कंपेयर्ड टू अदर ग्रुप्स. राइट, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं यूपी के अंदर या इवन बिहार में यादव्स बीइंग अ रिलेटिवली डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप, ठीक है, कि कंपेयर टू अदर ओबीसी ग्रुप्स इनकी रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड बैकवर्डनेस बाकी से कंपैरेटिवली जो है कम हो गई है. दे हैव बीन मोर फॉरवर्ड इन द इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो इस तरह से जो है कैटेगराइजेशन हो सकती है. अकॉर्डिंग टू इवन एनसीबीसी उन्होंने भी एक डेटा निकाला जहां पे उन्होंने बोला ऑलरेडी दिस टास्क जो है ये शुरू हो चुका है. इनफैक्ट दे गेव एग्जांपल ऑफ 11 स्टेट्स विच इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी विच इज अ यूटी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु, जिन्होंने सब कैटेगराइज कर दिया है ओबीसीज को भी फॉर रिजर्वेशंस इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस. तो स्टेट गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो रिजर्वेशन है, अब रादर देन बीइंग अ ब्लैंकेट रिजर्वेशन फॉर ऑल, एक सब कैटेगराइजेशन कर दी गई है विद इन दी ओबीसी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आंध्र प्रदेश का एक एग्जाम्पल ले लें, आंध्र प्रदेश में ABCDE करके जो है सब कैटेगराइजेशन कर दी गई है ओबीसीज की. तो फॉर एग्जांपल जो ए ग्रुप है दैट उसके अंदर जो आपकी अबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं. जो ग्रुप बी है उसके अंदर जो वोकेशनल ग्रुप्स हैं, राइट, वो आ जाते हैं. देन जो ग्रुप सी है इसके अंदर देयर वर अ लॉट ऑफ शेड्यूल कास्ट हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, राइट, एंड तो उनको ओबीसीज के अंदर इंक्लूड किया गया है एज फार एज आंध्र प्रदेश इज कंसर्न्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस जो डी ग्रुप है उसके अंदर और ग्रुप्स जो हैं अदर ग्रुप्स मिसलेनियस ग्रुप्स इंक्लूडेड होते हैं. एंड ई के अंदर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं अमंगस्ट मुस्लिम्स,
उनको इंक्लूड किया गया है आंध्र प्रदेश की ओबीसीज की लिस्ट में। तो इस तरह की सब कैटेगराइजेशन जो है हमें बहुत सारे स्टेट्स में दिखती है, राइट। सिमिलरली हरियाणा के अंदर भी दिखती है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड दोज विच आर वेरी बैकवर्ड, राइट, उनके लिए एक अलग है। तो इस तरह की सब कैटेगराइजेशन स्टेट्स में हो गई है, तो अब वो सेंटर में भी जो है एक हो जानी चाहिए, जिसके ऊपर ये कमीशन जो है वो रिसर्च कर रही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द हरीश कुमार कमेटी। अब ये हरीश कुमार कमेटी क्या है? सबसे पहले तो नाम के साथ एसोसिएट होगी, तो चेयरपर्सन कौन होंगे? हरीश कुमार होंगे। अक्टूबर 2020 में जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2 मेंबर कमेटी बिठाई। तो किसने कॉन्स्टिट्यूट की है ये? हमें याद है, अब हमने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन कैबिनेट. This committee has now been constituted by whom? It has been constituted by the Election Commission of India. And किसके अंडर? अंडर हरीश कुमार, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एंड द सेकेंड मेंबर इज उमेश सिन्हा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है। अब क्या मैंडेट है, क्या पर्पस है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग दिस कमिटी? द पॉइंट इज टू एग्जामिन द इश्यूज विच कंसर्न एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर अ candidate. Now we know very importantly in the conduct of election rules there are certain limits that have been categorized. तो हमें पता है इलेक्शन जीतने के लिए कैंडिडेट्स को कैंपेन करना पड़ता है, पोस्टर्स, रैलीज, सोशल मीडिया, सो ऑन सो फोर्थ, एंड उसके ऊपर खर्चा होता है। एंड ये पूरे खर्चे का एफिडेविट जो है उन्हें इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद बिल्स एक्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंटली एक लिमिट सेट कर दी गई है कि कैंडिडेट्स कितना खर्चा कर सकते हैं इन इलेक्शंस की कैंपेनिंग पे, राइट। नाउ द मुद्दा इज कि ये जो लिमिट्स हैं ये काफी ज्यादा कम सेट की गई हैं एंड देयर इज अ नीड टू रिवाइज दीज एक्सपेंडिचर लिमिट्स। अब ये लिमिट्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो आरपीए है, आरपीए 1951, राइट, ये कहता है आपने एकदम करेक्ट अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं। और अगर आपने उन अकाउंट्स में गड़बड़ी की कि आपने सही अकाउंट जो है सबमिट नहीं किए हैं, या आपने फज किया है कोई डेटा, या आपने बिल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो बहुत कड़ी पनिशमेंट जो है आपके आरपीए देता है, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अप टू कितने? 3 साल तक। 3 साल तक आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो वेरिंग जो है दी हुई है, जो लिमिट है ऑन एक्सपेंडिचर, तो अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें सो 20 to 28 lakhs की जो है लिमिट है। एंड अगर हम सेंट्रल इलेक्शंस की बात करें, पार्लियामेंट की इलेक्शंस की बात करें, तो 54 to 70 lakhs की जो है लिमिट रखी गई है। ठीक है, अब बहुत सारी जो है ये चर्चा होती जा रही है कि अक्रॉस द इयर्स इट्स हाई टाइम नाउ, राइट, कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ गए हैं, कीपिंग इन माइंड इन्फ्लेशन। देन जो इलेक्टोरेट, जो पॉपुलेशन है जिसके अंडर हमने कैंपेन करना है, उनका भी नंबर बढ़ गया है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड देयर हैज बीन अ डिमांड कि आप जो है रिवाइज करें इस इलेक्शन को। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2020 के अंदर पहले ही एक अमेंडमेंट नोटिफाई कर दी थी इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स ऑफ 1961, जहां पे उन्होंने बोला दैट विच इमीडिएट इफेक्ट, जो ऑनगोइंग इलेक्शंस थे तब उन्होंने बोला तब से ही जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो 10% से इनहैंस कर दी जाएगी। सो वट एवर द एक्सपेंडिचर लिमिट, नाउ यू कैन स्पेंड अप टू 10% मोर ऑफ दैट। ये जो है उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से जो है ये बोल दिया, राइट। कमिटी ये जो बिठाई गई है अंडर हरीश कुमार, ये असेस करेगी कि क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं अक्रॉस सेवरल इलेक्शंस। अगर हम पिछले टाइम से शुरू करें, स्टेट्स के अंदर, यूटीज के अंदर, एंड एक्सपेंडिचर की क्या डिमांड्स रही हैं, राइट, कितना उनको स्पेंड करना पड़ रहा है टू केटर टू दी पीपल, राइट, विद पॉपुलेशन चेंज क्या क्या चेंजेस आए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में क्या चेंजेस आए हैं, इन सब चीज़ों को वो मद्देनजर रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली दे विल ऑल्सो बेयर इन माइंड क्या? आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। वाई? अब आपने कहीं पे जाना है, ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली अब वही सेम प्राइस, वही सेम पैसे दे के जो से आप 2000 के अंदर कैंपेनिंग करते थे, या 2004 में कैंपेनिंग करते थे, या 2010 में कैंपेनिंग करते थे, वो आज के डे में पॉसिबल नहीं होगी। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देयरफॉर आपको एक्सपेंडिचर लिमिट कितनी बढ़ानी चाहिए, कीपिंग इन माइंड दैट इन्फ्लेशन, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट दिस कमिटी विल कीप इन
mind. Lastly and very importantly, while deciding on increasing the expenditure limits, ये committee will also talk to the important stakeholders. Stakeholders like political parties, है ना. अब candidates belonging to the political parties ये campaign करते हैं. इंडिया के अंदर independent candidates खड़े होते हैं, but more or less जो overwhelmingly candidates जीतते हैं, they happen to belong to one or the other political party. So political parties जो है एक बहुत important stakeholder है. ठीक है, इसके अलावा और भी स्टेक होल्डर्स जो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं इन इलेक्शंस, इन कैंपेनिंग, उनसे बातचीत करके जो है डिसाइड किया जाएगा कि कितना जो है ये एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ा देना चाहिए, एंड उस हिसाब से जो है ये कमिटी अपने रिकमेंडेशंस आगे रखेगी इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. राइट. So a very, very important committee that you should remember. Next committee is the Committee on Criminal Law Reform. अब इसको लेके जो है काफ़ी डिबेट चली है. 2020 में जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने एक नेशनल लेवल कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की. कहाँ पे? एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ NLU, दैट इज रणबीर सिंह. ठीक है, अब इन्होंने एक कमेटी बना दी और इसके मेंबर्स आल्सो इंक्लूड GS बाजपेयी जो कि रजिस्ट्रार है NLU के, राइट, बलराज चौहान हु इज द VC ऑफ DNLU जबलपुर, महेश जेठमलानी जो कि एक सीनियर एडवोकेट है, एंड GP थरेजा जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं दिल्ली के. राइट. जो मैंडेट क्या है, क्या पर्पस है, ये रेकमेंड करेंगे रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री. अब वी नो दैट अ लॉट ऑफ क्रिमिनल लॉज जो है इंडिया के, उनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा जो है कलोनियल हैंगओवर चलता आ रहा है. क्यों? क्योंकि अब आप IPC को ही देख लीजिए. IPC किसका? 1860 का चलता आ रहा है. CRPC इज मच मोर रीसेंट 1974 का. बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारी क्रिमिनल लॉ के ऊपर जो कमिटीज आई हैं, जस्टिस मालिमत कमेटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिन्होंने टाइम एंड अगेन जो है कहा है दैट देर इज नीड टू really try and bring about reforms in the committee in the criminal law to keep up with the times. ठीक है, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है, काफ़ी ज़्यादा बातचीत रही है, और उसी काम के लिए अब उन्होंने ये कमिटी भी बिठा दी है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज़ जो कि याद रखनी है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज कि अब इन्होंने क्या मैंडेट रखा है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट क्रिमिनल लॉज. अब इन्होंने कहा है कि हम ये रिफॉर्म जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स या उनके ह्यूमन राइट्स को नहीं, उन्होंने बोला है दैट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, द कम्युनिटी एंड द नेशन. तो इन्होंने बोला हमें इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है नज़र रखनी है, एंड उसको कीपिंग इन कंसिडरेशन हमें ये रिफॉर्म्स लाने हैं, है ना. अब ये कमेटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम एंड अगेन इंडिया के अंदर डिमांड आई है कि UAPA जैसे जो लॉज है या NSA जैसे जो लॉज हैं, इनके अंदर हमको रिफॉर्म्स चाहिए, राइट, बिकॉज वेरी ऑफन दे नॉट दे एंड अप क्रिमिनलाइजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या सेडिशन की अगर हम बात कर लें. ठीक है, तो बहुत सारे जो है ऐसे इशूज उठते आ रहे हैं. बट अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स माइट बी इंपॉर्टेंट बट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन एट लार्ज. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस, डिग्निटी एंड जो एक वर्थ ऑफ इंडिविजुअल है, ये कमिटी ने ये आगे रखा. Now very importantly, now one question that you should be raising and जो आपको पता होना चाहिए that law reform usually जब हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी law reform हो, right, civil हो या criminal हो, usually comes within the mandate, within the sphere of working of the Union Ministry of Law. तो आपकी जो law ministry है वो usually इसके ऊपर काम करती है rather than the MHA. And historically इनमें changes suggest करने के लिए we've had a body जो हम time and again constitute करते हैं called the Law Commission of इंडिया. ठीक है, तो यूजुअली इनका काम होता है जो कि ये वाया वेरियस रिपोर्ट्स अपनी रिकमेंडेशंस आगे रखते हैं ऑन वेरियस डोमेन्स ऑफ रिफॉर्म्स, जहां पे ये जो कमीशन है बहुत इंटेंसिव टाइम के अंदर बहुत सारी बातचीत करके नेशन वाइड कंसल्टेशंस होती है विद एक्सपर्ट्स, विद पीपल, विद लीगल स्कॉलर्स, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years के बाद जो है ये एक रिपोर्ट जो है देते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, जो कि फिर प्लेस की जाती है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड दैट इंस्टेड ऑफ द लॉ कमीशन डूइंग दिस टास्क आप एक यूनिवर्सिटी को क्यों दे रहे हैं. ठीक है, देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ व्हाई आरंट
जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया थी फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोला था दैट यू नीड ग्रेटर नंबर ऑफ एडवोकेट्स एंड लीगल ल्यूमिनरीज ऑन द बोर्ड, राइट, कि ये जो है सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इतने ब्रॉड चेंजेस, इतने जो है वास्ट एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस क्रिमिनल लॉज में लाने के लिए। तो ये कमिटी को भी याद रखना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द टास्क फोर्स ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, अब ये जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर भी आ सकता है, आपका जो गवर्नेंस का पोर्शन है उसमें भी आ सकता है, राइट। रिवर वाटर, उनका यूजेज, रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द सेम, काफी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो ये याद रखना जरूरी है। अब ये टास्क फोर्स जो है ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंकिंग आपको पता होना चाहिए, राइट, कि अब हम कब से जो है इन्विसेज करते आ रहे हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर भी हमने ये इन्विसेज किया था कि हमारे जो सर्टेन बेसिन्स है, कई ऐसे बेसिन्स हैं जिनके अंदर बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, विच ऑफन लीड्स टू फ्लडिंग, एंड देन देयर आर सर्टेन बेसिन्स विच आर वाटर स्कार्स। तो इन्होंने क्या बोला था कि हम रिवर्स को इंटरलिंक कर सकते हैं जहां पे एक्सेसिव वाटर जो है वाटर स्कार्स बेसिन्स रिवर्स के अंदर जो है ट्रांसफर किया जा सके। तो इन्होंने दो ब्रॉड कैटेगरीज बना दी है, एक आपका हिमालयन इंटरलिंकिंग वाला प्रोजेक्ट है और एक पेनिनसुलर रिवर्स को इंटरलिंकिंग का जो है पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसके ही तहत देयर वाज अ टास्क फोर्स ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री राम विदिरे, जो कि एडवाइजर भी हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड इसको बनाया गया था, जो पहले हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा होती थी, राइट, उसने बनाया था इसको 2015 के अंदर। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, अगर तो वहां पे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को है जो है लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिवर्स वाटर यूज सो एंड सो फोर्थ, तो आप उसको मार्क करेंगे, बिकॉज तब जल शक्ति नहीं एग्जिस्ट करती थी, उससे पहले जो है इनकी एक डिस्टिंक्ट नेम, अलग जो है आइडेंटिटी होती थी। ठीक है, तो 2015 के अंदर जो है ये बनाई गई। नाउ दिस इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, इट इज पार्ट ऑफ अ वाइडर प्लान विच इज बीन मेड, विच हैज बीन इन द टॉक्स सिंस द 1980s, विच वाज योर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि तब की जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन थी, जो कि अब दोबारा एक पार्ट बन गई है ऑफ द अम्ब्रेला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 1980 में उन्होंने बात की थी अबाउट दिस बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर, जहां पे वाटर सरप्लस बेसिन जो हैं, जहां पे पानी बहुत ज्यादा है या काफी अधिक है, विच कैन ऑफन लीड टू फ्लडिंग और अदर सच इश्यूज, वहां से वाटर डेफिसिट या वाटर स्कार्स बेसिन जो हैं, जहां पे पानी की कमी होती है, दिक्कत होती है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ ह्यूज साइंटिफिक प्रोजेक्ट, तो इसके लिए जो है बहुत सारे इयर्स, बहुत सारी एक्सपर्टीज लगी। 2021 के अंदर, नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कमिटी जो है 15 की बनाई गई थी। टास्क फोर्स अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, बिकॉज रिसेंटली 2021 में जो टास्क फोर्स है उन्होंने अग्री किया एंड अप्रूव कर दिया द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसके ऊपर, ऑन द प्रपोज्ड, ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट महानदी बारामूल से टू गोदावरी धौलाईस्वरम लिंक। ठीक है, तो ये दो जगह के बीच में जो है एक लिंक बनाया जाएगा, इन दो रिवर्स के बीच में, महानदी एंड गोदावरी के बीच में, जहां पे दे विल ट्राई टू मेक श्योर दैट देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो जो गोदावरी के एलोकेटेड वाटर्स हैं, जो कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, वो इस लिंक रूट के थ्रू उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज ये रीजन जो है काफी वाटर स्कार्स है एंड यहाँ पे काफी पानी को लेके जो है दिक्कत चलती रहती है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है ये एनविसेज्ड कनाल है, तो अराउंड यहाँ पे कुछ बारामूल जो है लाई करता है और यहाँ से जो है पूरा ये लिंक निकल के आएगा। तो आपकी जो महानदी, ये जो रिवर है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, सॉरी नॉट हियर, यहाँ कहीं पे होगा ये बारामूल। ठीक है, तो यहाँ महानदी रिवर जो है, जो आ रही है ओडिशा के अंदर, यहाँ से लेके जो है ये पूरा लिंक करेंगे यहाँ गोदावरी में। सो ओडिशा से निकल के आंध्र प्रदेश, एंड देन देयर विल बी अदर सर्टेन स्मॉलर लिंक्स गोइंग इनवर्ड्स, जो कि तेलंगाना को भी जो है ये पानी प्रोवाइड
करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंटली ये आप देख सकते हैं पेनिनसुला के अंदर जो कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स जो इमेजिन किए जा रहे हैं, एनविसेज किए जा रहे हैं, वो इस मैप पे उपलब्ध हैं। सो नाउ यू कैन सी द वेरी इंपॉर्टेंट महानदी टू गोदावरी, जिसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है अब अप्रूव हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से निकल के गोदावरी तक जा रही है एंड देन आफ्टर यहाँ पे ये पानी जो है इंटरलिंकेज के थ्रू पहुंच जाता है, देन यहां से ये आगे चल के कृष्णा के अंदर भी जो है इंटरलिंक किया जाएगा। सो द गोदावरी टू कृष्णा प्रोजेक्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कैसे टुकड़ों में बनाया जाएगा। तो ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, बट इनको बिकॉज पानी ट्रांसफर हो रहा होगा तो इनसे ही और लिंक्स जो है चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे लिंक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये गोदावरी से एक यहाँ पे पहले महानदी से गोदावरी में आई, देन गोदावरी से और 2 लिंक्स जो हैं चलते आ रहे हैं जो कि कृष्णा के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। उसके बाद कृष्णा से जो है अगेन आगे पानी जाएगा, राइट। पानी ये जो है निकल के ये कृष्णा रिवर है, यहाँ पे नीचे पेनार नदी जो है उस तक एक और लिंक बनाया जाएगा विच विल बी द सोमासिला एंड द ग्रैंड एनीकट लिंक, राइट। एक और कनाल जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। देन पेनार रिवर से और आगे निकल के जो है पेनार से नीचे कावेरी तक और एक और लिंकेज जो होगी, सोमासिला एंड ग्रैंड एनीकट आर दिस पेनार टू कावेरी लिंक। कावेरी के ऊपर वैसे ही हमें पता है कितनी ज़्यादा डिस्प्यूट होती रहती है, कितने ज़्यादा इश्यूज उभरते रहते हैं स्टेट्स के लिए, कावेरी रिवर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब पेनार से भी जो है यहाँ पे और पानी लेके प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन कावेरी से भी नीचे जो है ये कावेरी वेगाई गुंदर लिंक कनाल जो है यहाँ पे इमेजिन की जाएगी। यहाँ पे आपकी कृष्णा जो पेनार है वहाँ पे ये 3 और जो लिंक्स है ये इमेजिन किए जा रहे हैं। तो यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दिस इंटायर प्लान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज्योग्राफी के अंदर ये आपको इन डिटेल भी कराया जाएगा, बट ये कमिटी जो है कीपिंग दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इस कमिटी का नाम और इसका पर्पस जो है याद रखना है। नेक्स्ट अप इज द केसी रेड्डी कमेटी। ये जो है अब किसने कॉन्स्टिट्यूट की? ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड 2020 में उन्होंने इसको बनाया था। इट इज एन 11 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी विच इज हेडेड बाय डॉक्टर केसी रेड्डी जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। एंड क्यों बनाई गई थी? दिस वॉज प्राइमरली मेड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट। नाउ थ्रू आउट द फर्स्ट वेव एंड देन इवन थ्रू द सेकेंड वेव देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स का के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है COVID-19 का। तो चाहे वो माइग्रेंट क्राइसिस हो जहाँ पे उनके पास प्रॉपर एवेन्यूज ऑफ स्टेइंग नहीं थे, ट्रैवलिंग नहीं थे, चाहे ये ऑफेंड बच्चों की बात हो रही हो, राइट। तो ये बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो हैं उनको आगे रखा गया था, उनको सामने रखा गया था। तो ये कमिटी वही काम कर रही है, COVID-19 का इम्पैक्ट एनालाइज करना ऑन ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली जो कुछ मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, माइग्रेंट्स हो गए, राइट, आपके ऐसे लोग हो गए हु लॉस देयर जॉब्स जो कि ऑलरेडी जो है इकोनॉमिकली डिप्राइव थे, उन पे क्या असर हो रहा है, ऑर्फन्स जो हो गए, विडोज जो हो गई, सीनियर सिटीजन्स जो हो गए, इन सब के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो स्टडी कर रहे हैं। साथ ही में इसको स्टडी करके वो क्या देखना चाहेंगे? वो देखना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर रिस्पॉन्स या क्या फ्यूचर पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि अगर फ्यूचर में भी ऐसे क्राइसिस आते हैं तो हाउ डू वी कॉम्बैट दोज क्राइसिस, हाउ डू वी बेयर इन माइंड कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल हो सके एंड सबकी जो है सुरक्षा एंड सेफ्टी गारंटी हो सके। द लास्ट कमिटी फॉर टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंटली द जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी। अब ये जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है बिकॉज ये एक ऐसे इशू के साथ कंसर्न रखती है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में था। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने इस हाई लेवल कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, और किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया था? बेसिकली इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी एंड रेकमेंड वेरियस मेजर्स जो कि हमें चाहिए सो एज टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। ठीक है, ये क्लॉज 6 काफी चर्चा में रहा है। असम अकॉर्ड जो कि 1985 के अंदर हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंटली NRC के चलते हुए, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इन सब के चलते हुए जो है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्लॉज 6 बेसिकली जो था असम अकॉर्ड का, ये प्रॉमिस करता था दैट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, legislative
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स जो कि रिक्वायर्ड हैं वो इनैक्ट किए जाएंगे सो एज टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. So one of the reasons कि NRC movement चली है because of the idea of एक ये sons of soil movement है असम की, कि हमारी जो एक Assamese indigenous identity है because of coming in of the illegal migrants, because of the coming in of outsiders, Assamese identity is being threatened. ठीक है, तो ये एक आइडिया चलता आ रहा है. इनफैक्ट 1985 के असम अकॉर्ड के बाद ही सिटीजनशिप एक्ट को भी 1986 में अमेंड किया गया था. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये असम अकॉर्ड. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, हमने 2 मिनट सीरीज के अंदर इसको डिटेल में कराया गया था. राइट, ऊपर मैं एक कार्ड लगा दूंगी सो यू कैन जस्ट गो हैव अ लुक एट दैट वीडियो विच इन डिटेल टॉक्स अबाउट द असम अकॉर्ड. राइट, तो ये क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लॉज 6 के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्लॉज 6 है क्या. राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्लॉज 6 किस चीज के साथ डील करता है असम अकॉर्ड का. तो ये इन चीजों के साथ जो है डील करता है. असमीज आइडेंटिटी और इसके कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ मेजर्स जो है उनको इनैक्ट करना. तो अब असम के अंदर बहुत ज्यादा डिसग्रैंटलमेंट थी कि आपने हमको ये प्रॉमिस किया बट नो सच मेजर्स वर एवर टेकन. And so to keep in mind that what such measures can be recommended so that the clause 6 can be implemented, it can be put into the works, ये high level committee जो है constitute की गई थी. Under whom? Under एक retired justice जो है बिप्लब शर्मा, उनके अंडर जो है constitute की गई. Now very importantly Feb 2020 के अंदर 2019 में बनाई गई थी कमिटी. 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी विद वेरियस रिकमेंडेशंस टू द फॉर्मर असमीज चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. तो इनको जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दे दी. हाउएवर अभी इतना कुछ आया नहीं है, जो रिपोर्ट है उसके बारे में इतना चर्चा नहीं हुई है. इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली आपके जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है विच इज योर ऑल असमी स्टूडेंट्स यूनियन, इनके भी 3 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर थे बट दे नेवर अटेंडेड द मीटिंग्स. ठीक है, तो काफ़ी जो है इस हाई लेवल कमिटी को लेके भी जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी. नाउ 2021 में डिस्पाइट द रिपोर्ट बीइंग सबमिटेड इन 2021 में अब जो गवर्नमेंट है, असमीज गवर्नमेंट है, उन्होंने इस रिपोर्ट को हैंड ओवर कर दिया है टू अ टीम ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स जो कि अब एग्जामिन कर रही है द वेरियस रिकमेंडेशंस जो कि इन्होंने आगे रखी हैं. ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 कमिटीज. इन 6 कमिटीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. नेम ऑफ द कमिटी, कॉन्स्टिट्यूटेड, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, देन चेयर्ड बाय एंड पर्पस ऑफ द कमिटी. ठीक है, ऐसे टेबल बना के आप इन चीज़ों को जो है याद रख सकते हैं बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे. मूविंग ऑन विद आवर रिविजन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंटली आई होप इन दिस वीक आपने जो हमारे वीक 2 का प्लान था ऑफ कवरिंग प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप, उसको कवर कर लिया होगा. राइट, हमने जो है आपको पूरे बताए थे, डिटेल्स दी थी कि आपने लक्ष्मीकांत जो है उसको कंप्लीटली कवर करना है, उसकी वेरियस चीज़ें जो है आपने पढ़नी है. मूविंग ऑन, जो हमारा वीक 3 है, प्रीएम्बल नहीं आना चाहिए इसमें, इसके अंदर जो है हम एक बहुत ही डायनामिक कॉम्पोनेंट्स जो है उनको कवर करेंगे विच इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर पूरा चैप्टर है, आपने उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट साथ ही में फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड अपडेशंस हुई हैं, चाहे वो राइट टू प्रिवेसी की बात हो, राइट टू प्रिवेसी के अंदर क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड होती हैं, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट की बात हो, राइट वो किस चीज़ों पे किस तरह से बात की है, राइट टू प्रोटेस्ट की बात हो कि किन कंडीशंस के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट अवेलेबल है एंड किन कंडीशंस के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट अवेलेबल नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए. राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट्स के राइट टू प्रिवेसी जो है कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया है. दैट इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू टेल मी. एंड सेकेंडली राइट टू प्रोटेस्ट जो है कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो इस तरह की चीजें बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, साथ ही में अमेंडमेंट प्रोसेस, क्या अमेंडमेंट का प्रोसेस है, किस तरह की अमेंडमेंट्स होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड साथ ही में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये सब जो है आपने पढ़ना है. तो बहुत ही डायनामिक कंपोनेंट है जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत जितने भी करंट अफेयर्स के अंदर अपडेट्स हुए हैं वो आपको पता
होने चाहिए। तो इसी तरह से अगले हफ्ते वीक 4, फिर वीक 5, वीक 6, वीक 7 एंड वीक 8 का प्लान आएगा। अगर आप अपने आप से कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं, आई कांट कीप अप विद द अपडेट्स एंड द करंट अफेयर्स एंड मुझे एक ईजियर प्रोसेस चाहिए, तो आप हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर आप प्रीलिम्स का, अगर आपको लगता है मेरा स्टैटिक मोर और लेस क्लियर है, आई नीड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स एंड द अपडेट्स बिट, तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स या अपडेट्स वाला क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे स्टैटिक की भी रिवीजन करनी है कि स्टैटिक में से कौन सा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट हो गया एंड कौन सा पार्ट जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी मुझे देखना है, तो आप हमारा जो कंबाइंड स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है वो खरीद सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूसली टेस्ट योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज भी लिमिट हो रही है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन से भी सीखते हैं, एंड साथ ही में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है टू रियली हाउ विल यू एंड अप एक्टिंग ऑन द डी डे। तो हमारी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, तो आपका जो वीकर सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप इनफैक्ट टेस्ट दे के भी देख सकते हैं व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर फेयरिंग वेल, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जहां पे आप अभी भी वीक है, तो उस हिसाब से आप रिवीजन का टाइम जो है अपने आप को अलॉट कर सकते हैं पर सब्जेक्ट। देन देयर आर हाफ लेंथ टेस्ट एंड लास्टली फुल लेंथ टेस्ट जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो है हमारे कॉस्ट हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर, वी हैव सब्सिडाइज्ड द कॉस्ट सो दैट यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ देम। जो हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स कवर करने हैं, इट इज अवेलेबल एट ₹2500। इनके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली जून में होने थे प्रीलिम्स, अब अक्टूबर में हो रहे हैं। मई टू सितंबर के भी जो करंट अफेयर्स है, मंथ वाइज करंट अफेयर्स की तरह पूरी तरह से कवर्ड है। देन अगर आप स्टैटिक की भी रिवीजन चाहते हैं, तो स्टैटिक प्लस करंट जो है 4500 में सिर्फ अवेलेबल है। देन अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, इफ यू वांट विद वीडियो सोल्यूशन, इट इज एट ₹2500। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं चाहिए तो इट्स एट 1750। एंड अगर आप सब्जेक्ट वाइज एंड हाफ लेंथ टेस्ट नहीं करना चाहते एंड यू ओनली वांट टू गिव फुल लेंथ टेस्ट विच आर 10 फुल लेंथ टेस्ट इन ऑल, दे आर अवेलेबल एट ₹2000। इसके अलावा इफ यू फील नहीं मुझे क्रैश कोर्स भी करना है प्लस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में ये अवेलेबल है विच इज एट ₹5500। ठीक है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट द टोल फ्री नंबर 1800-890-3043, or you can write into us at sleepy.classes@gmail.com if you want to avail any of these courses. Right, this is all for today. Thank you, and keep watching Sleepy Classes and keep revising with us, because these last few weeks will prove to be very, very crucial for the result of your prelims.